السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ بھر میں فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے عوام میں زبردست رد عمل۔ سرٹیفکیٹس کی اجرائی کا عمل تاخیر کا شکار، می سیوا مراکز پر خطاریں۔ نامپلی میں فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ پر زائد فیس وصولی کا الزام، MLA ماجد حسین کا اچانک معائنہ، درخواست فارم فروخت کرنے والوں کو سخت وارننگ، عوام سے اضافی رقم لینے پر کارروائی کا انتباہ۔ تلنگانہ کے محکمہ پولیس میں بھرتیوں کا اعلان، پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے 7437 جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ کیا جاری۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے کئی اضلاع میں شدید بارش کا سلسلہ جاری، جگتیال میں اسکولز کو چھٹی کا اعلان، CM ریونت ریڈی کو دہلی سے حیدرآباد لانے والے طیارے کو لینڈنگ میں ہوئی مشکل۔ محبوب آباد ضلع میں گروکل ڈگری کالج کی 2 طالبات لاپتہ ہو گئی، پرنسپل نے پولیس میں شکایت درج کروائی، CCTV کیمروں کی مدد سے ہوا تحقیقات کا آغاز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے متعلقہ فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ کی اجرائی میں تاخیر کی وجہ سے عوام میں تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریاست میں تمام شہریوں کو فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ جاری کرنے اور MRO دفاتر سے اندرون 2 یوم توثیق و تصدیق کے بعد اجرائی کی ہدایت کے باوجود یہ عمل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ حکومت کے اعلان کے بعد ریاست میں می سیوا مراکز سے ہزاروں افراد نے اس فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست داخل کی تھی۔ اندرون 2 یوم انہیں سرٹیفکیٹ کی اجرائی عمل میں نہیں آئی ہے اور لوگ ابھی بھی می سیوا مراکز کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ کہا گیا ہے کہ کچھ افراد کو یہ سرٹیفکیٹ حاصل بھی ہو گئے ہیں، تاہم بیشتر افراد اس میں تاخیر کی شکایت کر رہے ہیں۔ حکومت نے می سیوا مراکز پر 46 روپے ادا کرتے ہوئے درخواست داخل کرنے کی سہولت فراہم کی تھی۔ اس کے علاوہ عوام کو گھر بیٹھے بھی آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی سہولت کا آغاز کیا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد ان سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے رجوع ہو رہی ہیں اور درخواستیں داخل کر رہی ہیں۔ متعلقہ عملے کو اس عمل میں تیزی لانے اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے نامپلی حلقے میں فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ کی درخواستوں پر مبینہ طور پر زائد رقم وصولی کیے جانے اور درخواست فارم فروخت کیے جانے کی شکایات پر AIMIM کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے MRO آفس اور متعدد می سیوا مراکز کا اچانک معائنہ کرتے ہوئے ایک آن لائن سروس سینٹر پر مبینہ بے ضابطگیوں کے بعد شٹر بند کرنے کی بھی ہدایت دی اور خبردار کیا کہ آئندہ اگر FRC درخواست فارم فروخت کیے گئے یا سرکاری مقررہ 40 روپے فیس سے زیادہ رقم وصول کی گئی تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ MLA نے الزام عائد کیا کہ منڈل دفتر میں مفت دستیاب درخواست فارم عوام کو باہر سے خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس سے شہری غیر معمولی یا غیر ضروری بوجھ کا شکار ہو رہے ہیں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ ایسی شکایات کا فوری خاتمہ کرتے ہوئے عوام کو بلا رکاوٹ سرکاری خدمات فراہم کی جائیں۔ آپ کو آخری بار گزارش کر رہا ہوں، آپ کو جو فیس می سیوا کی پرسکرائبڈ ہے وہی آپ کو لینا ہے۔ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے لیے 40 روپے ہے۔ اگر آپ 50 روپے لیں گے میں آپ کے می سیوا سینٹر پہ خود آؤں گا۔ اگر آپ پیسے بڑھ کے لیں گے میں خود آ کے آپ کے می سیوا سینٹر کے اوپر اپنے ذاتی لیٹر ہیڈ پر آپ کی کمپلین ڈالتے ہوئے آپ کا می سیوا سینٹر بند کرنے لگاؤں گا۔ یہ جو کوششیں ہو رہی ہے یہ عوام کو سہولت دینے مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے، اور اس کوششوں میں جو عوام کے فائدے کرنے کی جگہ پہ جو لوگ ان کو لوٹنے کا سوچ رہے ہیں ان سے بھی سختی سے مجلس اتحاد المسلمین ان کا مقابلہ کرے گی اور ان کے کاروباروں کو بند کرا دے گی۔ پھر سے آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ کسی کے باتوں میں مت آئیے۔ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے لیے صرف 40 روپے فیس ہے، جس کو آپ کو سیدھا می سیوا سینٹر کو جانا ہے۔ کوئی فارم آپ کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو می سیوا سینٹر کے آپریٹر کن جانا ہے، وہ پورے تفصیلات آپ کے بھر دے گا، 40 روپے لے گا اور اس میں آپ کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ 2 دن کے بعد منڈل میں انکوائری ہوئے بعد سے آپ کو کلیکشن کے لیے بلایا جائے گا۔ بس اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے۔
कोई 1 रुपया किसी को देने की जरूरत है। अगर आप किसी को दे रहे हैं वो हमारी ही बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये चीज़ हमें करना नहीं है। फिर आपसे अदबन गुजारिश है, अगर ऐसे कोई वाक़े नामपली हल्के में दिखाई देते हैं तो हमारी नोटिस में लाइए। कोई में भी मी सेवा सेंटर वाला 40 रुपए से ज्यादा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले रहा है, मेरी नजर में लाइए। इंशाअल्लाह हम उनसे हिसाब लेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा इसमें क्लियर करें। और एक बात है ना, और एक बात, जब आप मी सेवा सेंटर पे जाके ये फीस भर के एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं, यही आपका एक्नॉलेजमेंट है। इसको मंडल में लाकर इस पे स्टैंप मारने की कोई जरूरत नहीं। यही स्लिप आपका एक्नॉलेजमेंट है कि आपने मी सेवा सेंटर में अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। इस पे आपको कोई स्टैंप की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये पूरे डिटेल्स सीधी तौर पे डिजिटली एमआरओ ऑफिस में आ जाएंगे, वहां पे इंक्वायरी होगी और आपको फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। शुक्रिया। सारी रियासत तेलंगाना में महकमे पुलिस में भर्तियों का अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस में भारी तादाद में तकर्रुरात किए जाएंगे। इस सिलसिले में जुमला 7,437 मुलाजिमतों के लिए एक एलामिया जारी कर दिया गया है। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड तेलंगाना के मुताबिक सिविल, AR, स्पेशल पुलिस, जेल और महकमे फायर सर्विसेज में ये भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए एलामिया जारी किया गया है। जो एलामिया जारी किया गया है इसके मुताबिक कांस्टेबल सिविल की जुमला 3,697 जायदादों पर भर्तियां होंगी। इसके अलावा कांस्टेबल AR की 1,052 जायदादें होंगी। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर की 44 और कांस्टेबल की 1380 मुलाजिमतों पर की जाएंगी। गुज़िश्ता दिनों ही हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस में भर्तियों की मंजूरी देते हुए ऐलान किया था। अब तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से इन भर्तियों के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना भर से बड़ी तादाद में नौजवान महकमे पुलिस में इन भर्तियों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करेंगे। शहर हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है और कुछ मुकामात पर इंतहाई शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई हैं। महकमे मौसमियात ने कहा कि कुछ अजला में शदीद बारिश की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई और दीगर मुकामात से कुछ गाँवों का राब्ता भी कट गया है। इसके अलावा जिले जगतियाल में मूसलाधार बारिश की वजह से जुमेरात को तमाम स्कूल को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। मुलुगु जिले में छत्तीसगढ़ जाने वाली शाहरा के मुतासिर होने की भी इत्तलात हैं। इसके अलावा शहर में भी चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब शदीद बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें झील में तब्दील हो गई थी। कई मुकामात पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई और गाड़ियां पानी में फंस जाने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। बारिश की वजह से शहर के कुछ इलाकों में बरक़ी सरबराही भी मुनक़ता हो गई थी। कुछ मुकामात पर वोल्टेज में कमी और ज़्यादती की शिकायत भी की गई हैं। शदीद बारिश की वजह से निशिबी इलाकों में रहने वाले अवाम के लिए मुश्किल सूरत हाल भी देखी गई। हुकूमत की जानिब से मुतल्लिक़ा ज़िले अहदेदारों को चौकस रहने और मुश्किल वक्त में अवाम की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत भी दी गई है। हैदराबाद में जारी मुसलसल शदीद और मूसलाधार बारिश के असरात परवाजों की आमदोरफ्त पर भी पड़े हैं। चारशंबे की शाम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी इंडिगो की एक परवाज के जरिए नई दिल्ली से हैदराबाद आ रहे थे। ये परवाज हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए मुश्किल सूरत हाल का शिकार रही। कहा गया है कि शदीद बारिश की वजह से लैंडिंग के दौरान परवाज का तवाजुन ठीक नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से परवाज को दोबारा फजा में कुछ देर के लिए उड़ाया गया। दूसरी जानिब कोशिश में परवाज ने महफूज और कामयाब लैंडिंग कर ली। अहदेदारों ने ये बात बताई। ज़राए ने बताया कि परवाज की लैंडिंग के दौरान तमाम प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल रखा गया था। कहा गया है कि इस परवाज ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 6:15 पर उड़ान भरी थी और इसने हैदराबाद में रात 9 बजे लैंडिंग की। इस तरह ये परवाज निफ्स घंटे की ताखीर से लैंड हुई। कहा गया है कि तैयारे ने 20 मिनट तक फजा में चक्कर लगाए। इसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत 229 मुसाफिरीन सवार थे। एयरपोर्ट अमले ने लैंडिंग के वक्त सख्त चौकसी अख्तियार की थी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा कि इनकी एक सियासी ख्वाहिश है जिसका वो माह नवंबर में इजहार करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर बनना इनकी ख्वाहिश नहीं बल्कि वो कुछ दूसरी ख्वाहिश रखते हैं जिसका वो माह नवंबर में इजहार करेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर बनने की कतार में वो शामिल नहीं है, ताहम रियासती वजीर अपाशी मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ऐसी ख्वाहिश जरूर रखते हैं। उन्होंने कहा कि माह नवंबर में वो अपनी बड़ी सियासी
ख्वाहिश का इजहार करेंगे और उस वक्त तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के दाखिली मामलात में किसी से कोई इख्तलाफ नहीं रखते। इनको अगर किसी से कोई शिकायत दरपेश हो वो रास्त दिल्ली जाकर राहुल गांधी से ये शिकायत करेंगे और मीडिया में इस पर इजहार ख्याल नहीं करेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि पार्टी मसाइल पर मीडिया में बात ना करने का उन्होंने राहुल गांधी से वादा किया था और वो अपने इस वादे पर कायम हैं। 29 జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఈ 4 నెలల్లో కొంత రాజకీయపరమైన కొంత క్లారిటీ వస్తుంది నాకు. ఆ క్లారిటీ ఉంటే నవంబర్లో 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి మనసులో ఏముందని చెప్పే పరిస్థితి వస్తుందా, అప్పుడు ఇప్పుడు ఇట్లా మార్చి చెప్పిన ఇట్లా చెప్పే పరిస్థితి వస్తుందా ఉంటుంది. నేను ఎందుకంటే నాకు 24/24 పొలిటికల్, నేను పబ్లిక్ పాలిటిక్స్, నో ఫ్యామిలీ, భార్య పిల్లలు ఉండదు నాకు, పబ్లిక్ పాలిటిక్స్. విన్నావా? ఇది నా లైన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. विमलवाड़ा बस स्टेशन को असरी बनाने और इसकी तजाइन व मरम्मत के कामों के लिए संग बुनियाद रखा गया। रियासती उजरा टी नागेश्वर राव और ए लक्ष्मण कुमार के साथ वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने बस स्टेशन को असरी बनाने की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब के बाद एक एक्सप्रेस बस सर्विस की भी शुरुआत की गई। ये बस सर्विस विमलवाड़ा से कोरटला के जरिए बासरा तक जाएगी। कहा गया है कि अवामी जरूरियात और इनके मुतालिबात को पेश नजर रखते हुए विमलवाड़ा बस स्टेशन को असरी बनाने के कामों का आगाज किया गया। यहाँ बढ़ती हुई अवामी जरूरियात की तकमील में मौजूदा बस स्टेशन नाकाफी हो रहा था, जिसके बाद इन कामों को शुरू किया गया है। इस मौके पर हुकूमत के वेब ए श्रीनिवास, अरकान असेंबली के सत्यनारायण, मेडिपल्ली सत्यम, संजय कुमार के अलावा मुन्नूर कापू की सदनशीन बी श्री राम चक्रवर्ती, आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी, जिले कलेक्टर गरिमा अग्रवाल, सुपरिटेंडेंट पुलिस और दूसरे आला ओहदेदारों ने शिरकत की। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव की 50वीं सालगिरह तकरीब एक गुमशुदा लड़के को अपने वालिदैन से बचाने का जरिया बन गई। कहा गया है कि मलेश और मंजुला नामी जोड़ा पटन चेरू में रहता है। इनका एक लड़का है जिसका नाम महेश है। इस लड़के की जहनी सेहत ठीक नहीं है। ये लड़का 13 जुलाई से अपने घर से लापता था और इसके वालिदैन इसकी तलाश में मसरूफ थे। इस लड़के को किसी ने सिकंदराबाद बंसीलाल पेट इलाके में देखा और इसे वहां मौजूद यतीम खाने में भर्ती करवा दिया था। लड़का अपने बारे में ज्यादा तफसील नहीं बता पा रहा था। बीआरएस की मुकामी कायदीन ने गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के टीआर की सालगिरह के मौके पर इस यतीम खाने में मुनाखद किया था और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो महेश के वालिदैन ने देखा और इनकी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने इसमें अपने लड़के को देखा। वो फौरी तौर पर सिकंदराबाद के इस यतीम खाने में पहुंच गए और इनके लड़के को वालिदैन को सौंप दिया गया। इस वाक़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। మాకు పేరు మేము పోతా ఉంటే ఏడ్చిండు పట్టుకొని, మీరు వెళ్ళకండి ఉండండి అని చెప్పేసి ఏడ్చినాడు. ఏడ్చేసరికి బాధ అనిపించింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఫోన్ చేసిర్రు అన్న వాళ్ళు, కొంచెం చాలా మేము కూడా మస్తు హ్యాపీ ఫీల్ అయినాం. मिल गया मम्मी मम्मी अब्बा तुम्हारे? हाँ साथ जरा ये साइड लो कम भाई आओ आप कॉल करें हमारे, आप लोगों का काम है भाई, आप लोग कॉल करें पहले हमारे। साबिक रियासती वजीर मिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो रियासत के आबी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई है और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए मिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत की गफलत और लापरवाही की वजह से मुत्तहदा पालमूर जिले खुश्क साली का शिकार हो रहा है और वहां किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत कर्नाटक की जानिब से अलमाटी डैम की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए हुकूमत कर्नाटक ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा बनाया है। इसके लिए 80,000 एकड़ अराजी हासिल करने का भी फैसला किया गया है। हुकूमत कर्नाटक
अलमाटी डैम की बुलंदी में 5 फीट का इजाफा करना चाहती है। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत ख्वाब गफलत का शिकार है और वो रियासत के आबी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने अमली इक़दामात नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अलमाटी डैम की बुलंदी में इजाफा करने कर्नाटक के फैसले पर कोई एतराज़ भी नहीं किया है। हुकूमत को गफलत का सिलसिला तर्क करते हुए रियासत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ఒక్క ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచి 150 టీఎంసీల నీళ్లు నిల్వ చేయడానికి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికి కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపి అక్కడ అధికారులందరూ కూడా నోటీసులు ఇచ్చి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి అవార్డు పాస్ చేస్తూ ఉంటే కింద ఉన్న ప్రాజెక్టులకు నీళ్ళు ఎట్లా వస్తాయని ఈ ప్రభుత్వం ప్రశ్నించదా, అడగదా? మొన్న ముఖ్యమంత్రులు కూర్చున్నప్పుడు ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు తెలంగాణలో అతిపెద్ద ప్రమాదమైన సమస్య పాలమూరుకు అతిపెద్ద సమస్య ఎడారి మారడానికి అవకాశం ఉంది, ఇది కట్టినట్లయితే దయచేసి మీరు ఒకటే ప్రభుత్వం ఉంది, ఒకవేళ కడితే మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తారు, మీరు ఆపండి, ఉన్న నీళ్ళతో సరిపెట్టుకోండి, ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచకండి, దయచేసి అందరం బతకాలి కదని మాట్లాడరా? ఇలా భీమా ప్రాజెక్టుకు వచ్చే నీళ్ళన్నీ ఎక్కడివి? వికారాబాద్ నుంచి అటు నీళ్ళన్నీ కూడా భీమా ప్రాజెక్టుకి వస్తాయి. 70% వాటర్ భీమాలకు వచ్చే వాటర్ తెలంగాణ వాటరే. అదంతా కూడా ఒకప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నదే. తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కట్టింది కేవలం తెలంగాణనే, తెలంగాణ డబ్బులతోనే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడక ముందు కట్టినటువంటిది. साबिक रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी का यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में इलाज जारी है, जहां इन्हें कल्ब पर हमले के बाद शरीक किया गया था। बीआरएस के कई कायदीन ने दवाखाना पहुंचकर मिस्टर सुदर्शन रेड्डी की सेहत के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और डॉक्टर से इलाज के बारे में तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इन कायदीन ने सुदर्शन रेड्डी के अफराद खानदान से भी मुलाकात की और इनकी तसल्ली और हौसला दिया। साबिक रियासती उज़रा टी जगदीश रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, ई दयाकर राव, श्रीमती सत्यवती राठौर, MLC रविंदर राव, साबिक रुकने असम्बली के प्रभाकर रेड्डी और दूसरों ने यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात की। डॉक्टर से बातचीत करते हुए सेहत की सूरत हाल और इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और डॉक्टर से ख्वाहिश की कि सुदर्शन रेड्डी को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम की जाए। अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इन तमाम कायदीन ने इन्हें तसल्ली दी और सुदर्शन रेड्डी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में वाक़े गुरुकुल डिग्री कॉलेज से 2 तालिबात लापता होने की इत्तलात हैं। कहा गया है कि महबूबाबाद टाउन में वाक़े तेलंगाना स्टेट ट्राइबल वेलफेयर विमेंस गुरुकुल डिग्री कॉलेज की 2 तालिबात यहां से अचानक लापता हो गईं। इनकी गुमशुदगी का पता चलने के बाद कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती बंधु माधवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और इनकी तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये पता चलाने की कोशिश जारी है कि ये 2 तालिबात कहीं गई हैं। पुलिस की जानिब से कॉलेज और अतराफ के इलाकों के CCTV फुटेज का जायजा लेते हुए लड़कियों का पता मालूम करने की कोशिश की जा रहा है। 2 लड़कियों की गुमशुदगी पर इनके वालिदैन ने भी तशवीश का इजहार किया है। कुछ गोशों से हॉस्टल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया जा रहा है। पुलिस टीम ने हॉस्टल पहुंचकर इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की और इन लड़कियों की तलाश के लिए फौरी तौर पर इक़दामात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद के अट्टापुर इलाके में अवामी शिकायत पर तेलंगाना फूड सेफ्टी महकमा के अहदेदारों ने एक गैर लाइसेंस याफ्ता फूड सेंटर पर अचानक छापा मार कार्रवाई करते हुए संगीन ग़िज़ाई हिफाजती खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ किया है। मुआयने के दौरान FSSAI लाइसेंस के बगैर कारोबार, बार बार इस्तेमाल किया गया स्याह और मुज़ीर सेहत कुकिंग ऑयल, सफाई की इंतहाई खराब सूरत हाल, मक्खियों की भरमार, खुले नाले के करीब गैर सेहत बख्श अंदाज में खाने की तैयारी, कचरे की मौजूदगी, पेस्ट कंट्रोल के इंतजामात का फुकदान और फूड हैंडल्स की जानिब से हिफाजती लिबास इस्तेमाल ना करने जैसी बेज़ाब्तियाँ पाई गई। हुक्काम ने अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र तकरीबन 3000 पानी
पूरी, 4 किलो समोसे और 2 किलो इस्तेमालशुदा कुकिंग ऑयल तल्फ कर दिया। लेबोरेटरी जांच के लिए नमूने हासिल किए। कारोबार फौरी तौर पर बंद कराते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टडीज एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। महकमे ने शहरियों से अपील की है कि गैर महफूज ग़िज़ाई अशिया या गैर सेहत बख्श खुराक से मुताल्लिक़ शिकायत फूड सेफ्टी हेल्प डेस्क पर दर्ज करें ताकि अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। शहर में टप्पा चबूतरा पुलिस ने एक खातून पर कातिलाना हमला करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कहा गया है कि यह कातिलाना हमला जायदाद के झगड़े में किया गया था। टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में 3 अफराद ने एक खातून पर कातिलाना हमला करके इसे शदीद जख्मी कर दिया था। इस सिलसिले में मोहम्मद दस्तगीर शरीफ उर्फ पप्पू, मोहम्मद गुलाम नबी कुरैशी और मोहम्मद उस्मान उर्फ अड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा गया है कि इन तमाम के माबैन जायदाद के मुसलसल तनाज़ा चल रहा था। मुलज़िमीन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुतासरा खातून के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी की थी। बादअज़्ज़ा उन्होंने एक बड़े चाकू से खातून पर कातिलाना हमला कर दिया। इसके अलावा खातून के शौहर ने जब मुदाखलत करने की कोशिश की तो इस पर भी हमला किया गया था। मुतासरा खातून और इसके शौहर किसी तरह इस हमले से बचने में कामयाब हो गए थे। मुलजिमीन ने इस हमले के बाद राफरार इख्तियार की थी। टप्पा चबूतरा पुलिस ने इसे एसीपी कुलसुमपुरा की निगरानी में तहकीकात की। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अदालत में पेश करके तहवील में भेज दिया गया। परसों यहाँ अपना टप्पा चबूतरा लिमिट्स में परसों पीर के दिन शाम में एक अटेम्प्ट मर्डर हुए थे और शमीम सुल्ताना के ऊपर 3 जने अटैक कर रहे थे। उसमें फ़ौरन अपना टप्पा चबूतरा पुलिस लोग एंड लोकल मोहल्ला वाला मिलके हॉस्पिटल में पहुंचाया उसको। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है उस्मानिया हॉस्पिटल। इसमें एक केस इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार करे। उसमें इसका शमीम सुल्तान का देवर मोहम्मद दस्तगीर शरीफ एंड उनका दोस्त गुलाम नबी एंड उस्मान अलियास अड्डू, ये 3 जने मिलके इनको मारने के लिए कोशिश कर रहे थे एंड अटैक करा तलवार से एंड वजह है इनका प्रॉपर्टी पूछ रहे थे, इसका हिस्सा प्रॉपर्टी हिस्सा पूछ रहे थे। उसको हटाने के लिए ये लोग 3 जने इसके ऊपर अटैक कर रहे थे एंड अभी ये 3 जनों को अरेस्ट करा, गिरफ्तार करे एंड अभी जेल को भेज दे रहे। सब इससे कुछ केसेस हैं क्या लोगों तीनों के कुछ? ये तीनों में उस्मान अलियास अड्डू जो है सस्पेक्ट शीट है। इसके पहले आसिफ नगर लिमिट्स में एक 307 में इन्वॉल्व है एंड एक स्नैचिंग केस भी इनके ऊपर है। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री 2 केसेस है। सभी तलवार कहाँ से लाए सभी लोग? गुलाम नबी जो कुरैशी कम्युनिटी है इनका घर से एक तलवार लेके आए। सभी लोग कुछ फाइनेंस भी चलाते हैं बोल के मालूम होना से। फिर उसके बारे में पता नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर प्राइवेट फाइनेंस एंड ऐसा कुछ चला है तो वो भी एक केस डालेंगे। मोहम्मद दस्तगीर शरीफ जो है ना सर, वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल रोल भी चल रहा है सर। उन्हें जो है ना पब्लिक को जो है अमाउंट देता है और उसमें से बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट वसूल ना करने पर भी उन्हें अटैक करता है और लोगों को उठा के मारता है उसको। ऐसा कुछ कंप्लेंट कुछ है तो फिर उसका वही प्राइवेट फाइनेंस का जो वो भी केसेस हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हम जारी रखेंगे। सब कंडीशन कैसा है लेडीज़ का? अभी तो ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहे, सर्जरी भी हो गए, नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। तेलंगाना में राशन कार्ड KYC मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। जिले कामारेड्डी डीलर एसोसिएशन के नायब सदर अब्दुल क़य्यूम निशाद ने अवाम से अपील की है कि जिन मुस्तहिक़ीन ने अब तक बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं करवाई वो फौरी तौर पर अपने करीबी राशन डीलर से राब्ता करें, KYC मुकम्मल करवाएं। उन्होंने कहा कि जिन अफराद की KYC पहले ही हो चुकी है वो भी एक मरतबा अपने डीलर से तस्दीक ज़रूर कर लें ताकि किसी तकनीकी खराबी की वजह से राशन कार्ड ब्लॉक ना हो। तेलंगाना सिविल सप्लाईज महकमा के मुताबिक रियासत भर में 100% KYC का हदफ मुकर्रर किया गया है और फिलहाल आखिरी तारीख में तोसी के इम्कानात भी हैं। शहरियों से अपील की गई है कि 31 जुलाई से पहले ये अमल लाजिमन मुकम्मल करें। जिले आदिलाबाद में मुसलसल मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जिले इंतजामिया
अलर्ट पर हैं। आवाम को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए जिले कलेक्टर में 24 घंटे फाल खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। किसी भी हंगामा सूरत हाल या मदद की जरूरत पर शहरी टोल फ्री नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। दूसरी जानिब जिले कलेक्टर राची शाह और SP अखिल महाजन ने तामसी मंडल के सैलाब से मुतासरा इलाकों भीमना वागू कुलोट और मधडी वागू प्रोजेक्ट का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। हुक्काम ने मुतालिका महकमों को मुकम्मल चौकस रहने की हिदायत दी और आवाम से अपील की है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, नदी नालों पुलों और सैलाबी पानी के करीब न जाएं और सिर्फ जिले इंतजामिया की जारी करदा हिदायत पर अमल करें। शदीद बारिशों के बायस जिले आदिलाबाद के जनित मंडल में तरनम गांव के करीब नेशनल हाईवे 353B पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हो गई। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिले पुलिस सुपरिटेंडेंट अखिल महाजन IPS खुद मौके पर पहुंचे और मुतालिका अफसरान के साथ इंतजामात का मुआयना किया। SP ने निशिबी इलाकों, नदी नालों, पुलों और क्लोट्स पर खुसूसी निगरानी रखने, खतरनाक मुकामात पर पुलिस और ग्राम पंचायत के अमले को तैनात करने और ज़रूरत पड़ने पर ट्रैफिक का रुख मोड़ने की भी हिदायत दी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, सैलाबी पानी से गुजरने की कोशिश ना करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर पुलिस या इमरजेंसी सर्विस से रब्ता करें। वरंगल के तारीखी खानखाह खादरिया हवेली उर्स जागीर में हजरत सैयद शाह मुस्तफ़ा नबीरा खादरी का 85वां सालाना फातिहा निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मुनाक़द किया गया। इस मौके पर नमाज असर के बाद ज़ायरीन ने चादर गुल पेश की, फातिहा ख़्वानी की और इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। नमाज मगरिब के बाद मारूफ नाते ख्वां इस्माइल एंड ग्रुप ने रूह परवर महफिल समा पेश की, जिससे हाज़रीन खूब महफूज हुए। तकरीब की सरपरस्ती सैयद शाह यहया पाशा नबीरा खादरी अलमारूफ शोएब पाशा ने की। इस मौके पर उम्मत मुसलिमा के इत्तेहाद, अमन व अमान, भाईचारे और मुल्क की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। तकरीब में सैकड़ों अकीदतमंद शरीक हुए, जबकि इख्तिताम पर तमाम हाज़रीन में तबरुकात ताम भी तकसीम किया। खानखाह हाशमी अन्नासागर जोगीपेट में जानशीनी के मामले पर जारी तनाज़े के दरमियान एक अहम नशिस्त मुनक़द हुई, जिसमें पुलिस के आला ओहदेदारों की दरख्वास्त पर सिलसिला सोफिया के बुजुर्ग सज्जदगान खलीफाए शरीक हुए। जारी करदा प्रेस नोट में सूफी शाह मोहम्मद हुसैन अलमारूफ कुतुब पाशा कादिर शत्तारी ने बताया कि इजलास में मौजूद शज्जाद नशीन हजरत सूफी शाह मोहम्मद खलील हुसैन कादिर शत्तारी की उम्र और सेहत की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इस फैसले की तौसीक़ की गई कि तकरीबन 20 साल कब्ल इनकी जानिब से किया गया जानशीनी का ऐलान ही दुरुस्त, हतमा और काबिल कबूल तस्वर किया जाएगा। इसके मुताबिक तमाम बुजुर्गान सिलसिला सज्जदगान खलफाए और दीन की मौजूदगी में सूफी शाह मोहम्मद हुसैन अलमारूफ कुतुब पाशा कादरी शत्तारी को खानखाह हाशमी का आइंदा सज्जाद नशीन और जानशीन तस्लीम करने पर इत्तेफाक किया गया। प्रेस नोट के मुताबिक इस नशिस्त का मकसद जानशीनी के मामले पर पैदा होने वाली गलत फहमियों का खात्मा और किसी भी मुमकिना अमन व अमान की सूरत हाल से बचाना था, जबकि इस फैसले का शुरा ने खैर मकदम करते हुए मुकम्मल इत्तेफाक राय का इजहार किया। फैसला खुद खलील भाई का है। हम बहैसियत सज्जादगान ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खानखाह की हिफाजत करना और इस खानखाह के मुरीदों की बका का सोचना। हम ये मुकाम को मद्देनजर रखते हुए बड़े सरकार उनके अपने फैसले को कायम रख रहे उनकी इस अलील हालत में, जबकि अब अभी देख रहे कुछ देर बात करने पे उनको कुछ दूध पिलाए थोड़ी देर पहले, मैं बात कर रही था अभी, तो पता नहीं उनको कई को वॉमिटिंग्स हो रहे, अभी वो दूध की वजह से उनको उल्टियाँ हो रही, अल्लाह आलम, और अभी उनकी सेहत कुछ नासाज हो गई और उन्होंने फैसला लेने की कंडीशन में अभी नहीं है और उन्होंने फैसला नहीं ले सकते। देखो हर इंसान, हर खानखाह में दो पहलू रहते, किसी की तायद हुई तो खिलाफ मुखालिफत करने वाला हमेशा रहता तैयार, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से और सरकार हाशिम पीर दस्तगीर से हमारी ये सिफारिश है,
हमारी झोलियां उनके सामने फैली हुई है कि इस खानकाह की हिफाजत फरमाए, अमन को क़याम फरमाए और हम तमाम मुरीदों की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान और जज्बे की हिफाजत फरमाए और हम तमाम को एक साथ रहकर मजबूती से खानकाह को संभालने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अवाम में जबरदस्त रद्द-ए-अमल। सर्टिफिकेट्स की इजराई का अमल ताखिर का शिकार, मी सेवा मराकज पर खतारें। नापल्ली में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट पर जायद फीस वसूली का इल्जाम, एमएलए माजिद हुसैन का अचानक मुआयना, दरख्वास्त फॉर्म फरोख्त करने वालों को सख्त वार्निंग, अवाम से इजाफी रकम लेने पर कार्रवाई का इंतबाह। तेलंगाना के महकमे पुलिस में भर्तियों का ऐलान, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7,437 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया किया जारी। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी, जगतियाल में स्कूल्स को छुट्टी का ऐलान, सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली से हैदराबाद लाने वाले तैयारे को लैंडिंग में हुई मुश्किल। महबूबाबाद जिले में गुरुकुल डिग्री कॉलेज की 2 तालिबात लापता हो गई, प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, सीसीटीवी कैमरों की मदद से हुआ तहकीकात का आगाज। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।